अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। We will be discussing, and the matter of the day would be Russia-Ukraine prolonged war, which is converted into, great and havoc military skirmishes among the nations. From the western side, we can see the NATO alliances who are trying to protect Ukraine from the aggression of Russia. In the Eastern Europe, we can see the hegemony of Russia, and Russia has annexed 4 vital regions of Ukraine within a short span of time and declared these regions as an independent state after great referendum. Later on, if you go in the historical background, Russia already claimed over the Crimea in 2014. The first thing would be about Russia-Ukraine war, and secondly, we'll be discussing about the demand of Ukraine about the evacuation of Russia from Ukraine, and the Ukraine has demanded the European Union. And thirdly, the meeting between Russian President Emmanuel Macron with the President of Ukraine Zelensky. Thirdly, we'll be discussing about the suspension of Ukrainian grains by Russia, and the American. Fourthly, the American Secretary of State Antony Blinken is visiting Germany about this vital issue. इन तमाम उमूर के ऊपर हम डिटेल में गुफ्तगू कर लेंगे, क्योंकि ये बड़ा क्रूशल है। और इसमें एक एस्पेक्ट और भी, और इरानियन ड्रोन काफ़ी सुर्खियों में पूरी दुनिया में। The Kamazake drone, the fatal drone, it's proving very horrifying situation for the Ukraine in attacking their power grid stations, and America is accusing Iran of further alleging Iran for more sanctions. They are exerting the United Nations to impose more crippling sanctions over Iran. We will also discuss the American aspects in strengthening the NATO alliance, and चौथी बात पर हम ये भी डिस्कस कर लेंगे किस तरह से, और रशिया ने अमेरिका ने जो मिलिट्री ट्रूप्स अफगानिस्तान में उनको ट्रेनिंग दी थी, उनको रशिया जब वहाँ पर तालिबान की हुकूमत आएगी तो वो ईरान भाग गए थे, अब उनको रशिया लाकर वहाँ पर जंग में आप शामिल करें अपने साथ। ये तमाम स्टोरीज हमारे साथ बड़े मुदल्लल स्टोरीज और रेफरेंस के साथ हमारे पास मौजूद है। हम डिस्कस कर लेंगे जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट्स और दुनिया में ये तमाम स्कैफल किस तरह से हो रहे। इससे पहले हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है, स्पेशली either you are watching from anywhere in the from the world, I request you to just subscribe my channel. इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त खबर मिले, और फिर अपना कमेंट्स ज़रूर आप फीडबैक दे दें कमेंट बॉक्स में। I'll be answering you, and thirdly you share within your social premises. I shall be indebted. So let's move towards the story again. First of all, I move towards similarly we'll move towards Al Jazeera. As per Al Jazeera, Russia is recruiting US trained troops who fled to Iran after Taliban takeover for the war in Ukraine, the report says. अल जज़ीरा के मुताबिक जो ट्रेन किया था अमेरिका ने ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान के जो मिलिट्री को, वो जो जहाँ पर जब तालिबान की हुकूमत हुई आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, एंड दे एस्केप्ड इन ईरान। राइट नाउ रशिया इज इनवाइटिंग ऑल दोज ट्रेन ग्रुप्स, those guerrillas, to fight against the force of Ukraine and against the NATO alliances, whom Russia considers their utmost enemy and threat for their sovereignty and their access to warm water and Red Sea. तो यहाँ पर यूक्रेन के सरजमीन एक दलदल में फंस गया, बिल्कुल इकोनॉमिक कोलैप्स नज़र आते हैं, वहाँ पर फूड शॉर्टेज है, हेल्थ हाइजेनिक बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है, और अमेरिका और नेटो अलायंस को बचाने में नाकाम हो चुका। रोज़ाना सिविलियन डेथ देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर एक क़यामत का समा है। और रशिया के साथ जो ट्रीटी से आर्सेनल दूसरे ममालिक के वो भी बढ़ रहे हैं, रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस है वो फ्यूटाइल साबित हो रहे हैं, और दुनिया के ऊपर एक एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन है, और अमेरिका बराए नाम इसको कर्व करने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर पूरी दुनिया में क्राइसिस है। यूरोप ऑलरेडी जब विंटर सीजन आते हैं तो वहाँ पर एनर्जी का डिमांड कई गुना बढ़ जाता है। देन इट विल बी impossible for Biden administration to start its
campaign and give a vivid response to the masses, to the Democrats, whom he is would be addressing with to join to gain another power. So ये फायदा डोनाल्ड ट्रंप का जो रिपब्लिकन पार्टी उसको उठा सकते हैं, और इसी तरह रशिया को मोबिलाइज किया है, और सऊदी अरबिया को भी, बिन सलमान को भी उन्होंने कॉल किया है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उन दोनों के काफ़ी नोशंस मिलते थे, और काफ़ी दचका लगा है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को इन तमाम उमूर को देखकर। फॉल ऑफ अफगानिस्तान से लेकर फिर मिडिल ईस्ट से उनकी हजीमत, ईरान के साथ उनको काफ़ी धचका पड़ा, अब रशिया के साथ भी वो अब नाकाम ही नज़र आते हैं, उनके ऊपर कोई विजन और कोई स्ट्रेटेजी नज़र नहीं आते हैं। ये रादर यूक्रेनियन मैसेस मर रहे हैं, मैस डिस्ट्रक्शन है, वो अंडर क्राइसिस है, वो सिर्फ एड्स देने की बात कर रहे हैं। अगर हम आगे बढ़े तो यूक्रेन कॉल्स ऑन द G20 को उन्होंने कॉल किया है, ग्रेट पावर 20 जो पावर से दुनिया के, उनको बताया कि रशिया को आप आकर हमारे मुल्क से एक्सपेल करें, अदरवाइज हम सफोकेट हो जाएंगे। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर मजीद रशिया यहाँ पर जमाए बैठते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पूरा जो कैपिटल सी है कि उनकी जद में आएंगे और पूरे इंटायर कंट्री पर रशिया कब्जा कर सकते हैं। रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन सोफिस्टिकेटेड आर्मी इन द वर्ल्ड। इफ रशिया इज गिवन अनब्रिडल्ड इन वे दैट इट इज अनब्रिडल्ड, then the occupation of the whole entire Ukraine may also be possible. तो NATO alliances का रोल हमें यहाँ वाज़िह नज़र आते हैं कि अब कुछ नहीं है। The Kremlin has accused, आप रशिया का रिस्पॉन्स देखें। रशिया ने बताया है कि क्रेमलिन का डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्सप्लोजन ऑन द नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन विदाउट प्रोवाइडिंग डिटेल्स। अब रशिया की क्लेम ये है कि एक जर्मनी और रशिया के बीच में एक ऑयल गैस का जो पाइपलाइन का मंसूबा हुआ था, वो मेरे ख्याल से $10 मिलियन का था। उसके ऊपर एक बम एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से वो पाइप टूट गई, फट गए, और इसका इल्ज़ाम वो यूके और अमेरिका पर लगाते और बताते आप लोग इनका हमें तहकीकात करके सबूत दें, इसके ऊपर आया धमाका किसने किया। इस तरह से ये कि बिल्कुल तूलानी एक जंग की तरफ गामजन है। और आज ये खबर भी मिला कि यूक्रेन कॉल्स ऑन G20 टू बूट रशिया, और इसके बाद जो एंटनी ब्लिंकन है अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो डायरेक्ट जर्मनी जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ब्लॉक के बारे में बताना चलूँ, जो एडवांस कंट्रीज में जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ के जो यूरोपियन यूनियन के जो 28, 29, 30 जो तमाम ममालिक है, वो रशिया यूक्रेन के स्टांस पे अमेरिका के साथ ही, यूक्रेन के साथ तो वो नहीं, अमेरिका जो कहते हैं वो उनके पपिट है, वो इसके साथ है। और रशिया के साथ जो है ईरान, चाइना, रशिया, बेलारूस और इस तरह के कुछ जो अभी सऊदी अरबिया हो गया, इन तरह के कुछ बड़े पावर्स उनके साथ है। तो ये है कि फिर से एक वार स्कफल, वार इंडस्ट्रीज़ को तक़वियत मिल रही है। आज रशिया के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ जो इमानुएल मैक्रोन की मुलाकात हुई, इस दोनों में उन्होंने दो तरफा तजारत बढ़ाने, और मेन चीज़ उनके बारे में ये था कि वॉर शिप्स और इसके साथ साथ ड्रोन्स प्रोवाइड किया जाना था। तो इस हवाले से काफ़ी बात की कि किस तरह से आर्सेनल भेजा जाना है। तो हर तरह से असलहे की एक डाउन पूअरिंग हो रहे हैं, यूक्रेन को एक मकाम जंग बना दिया गया है, और इसके ऊपर बहुत हॉरिफाइंग कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया को देखने को मिल सकते हैं। यूक्रेन इसके अलावा गजाई पैदावार के हवाले से जाना जाता है, पूरी दुनिया में वो सप्लाई करता है अपने ग्रेन्स, वो भी सस्पेंशन का शिकार है। यूएन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, BBC को कोट कर रहा हूँ, एंटनी ब्लिंकन विल ट्रेवल टू जर्मनी टू मीट विथ हिज काउंटर पार्ट इन द ग्रुप G7 टू डिस्कस रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। वो ग्रुप G7 जो ग्रेट 7 है कंट्री से, उनके अंदर वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि रशिया के इन्वेजन के बारे में एंटनी ब्लिंकन वहाँ बताएंगे। अब अमेरिका अपने इन्वेजन के बारे में क्या बताएंगे, क्यों वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इन्वेट करते हैं। अब उनको ये अमेरिका डजंट सूट्स टू lecturing other countries because America itself is involved in hundreds of military invasion across the world, killing innocents, plundering the wealth of the poor peoples and looting them, mercilessly. Bearing such a horrifying record, America doesn't suit to be the advocate of democratic culture. Rather, America must seek a lesson from its horrifying past. Either it's a military invasion in Afghanistan, or it's the demolishing the sovereignty of the Iraqi land, or it's the or in the military invasion in Libya or Syria.
इन तमाम हवाले से बहुत तल्ख तल्ख हिस्ट्री है। अब ये ममालिक अपने ऊपर कोई कर्ब नहीं करते, अपने ऊपर कोई सेंक्शन आयद नहीं करते। थोड़े से ममालिक, जो कोई ममालिक उनके खिलाफ मुजाहिमत पैदा करते हैं तो उनको कर्ब करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से दुनिया के अंदर अनरेस्ट है। बड़े पावर को कर्ब करने वाले नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक, छोटे ममालिक तक, जो अरिस्टोक्रेट्स है, बड़े जो लोग हैं, बड़े मगरमच्छ है, उनके ऊपर हाथ डालते नहीं है। अब पाकिस्तान की सिनारियों में भी इमरान खान का जो नारा है वो यही है कि वो कहते हैं कि जब तक हम जस्टिस को इंश्योर नहीं करेंगे, until we go for the eliminating the power circles, eliminating the role of the offenders, the money launderers, and the corrupt politicians, we won't be have any say in upcoming future. Rather, we would be subjugating before the developed countries. तो इन हवाले से पूरी दुनिया में एक रिफॉर्म्स की जरूरत है। एफिशिएंट लीडर्स तमाम ममालिक से कहीं पर बैठे और विदाउट एनी बायसनेस एक इंटरनेशनल फोरम की जरूरत है। आप यूनाइटेड नेशंस के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। इट हैज़ बिकम जस्ट पपेट इन द हैंड्स ऑफ अमेरिका, and they are not going for any sanctions against America or Israel possessing thousands of nukes. Rather, it's going against the developing countries. Either it's Iran, Syria, Yemen. They're going for either military deals with the countries to bomb these countries, or either to sanction these countries. It's really horrifying facts and the bitter reality of this world. That's why there's great uncertainty, racism, prejudice, and famine across the globe. तो ये एक दिलखराश वाक़या है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन की जो एनर्जी कमिश्नर था कार्डी सिम्सन, वो वहाँ पर गए, आज यूक्रेन गए, उनकी कीव कैपिटल सिटी को विजिट करना था। उन्होंने कहना था आई एम इन कीव टुडे टू हेल्प स्केल अप support to Ukraine's energy sector. Ukraine energy infrastructure is under targeted attack by Russia and cruel and inhuman tactic to cause human suffering as the winter is approaching. तो मगरिब को उनकी विंटर की फिक्र इतनी नहीं है जितना वो कह रहे कि विंटर सीजन आ रहे हैं, यूक्रेन के अंदर बहुत तबाही मची है, एनर्जी सेक्टर तबाह हो गए, उनको हेल्प की ज़रूरत है। मगर यो एनर्जी क्राइसिस यूरोप के अंदर है, विद इन यूरोप है, इट्स अनप्रेडिक्टेबल। तो इन चीज़ों को कर्व करने का डोनर जो बाइडन परेशान है, किस तरह से सऊदी अरबिया को कायल किया जाए और ईरान को कायल किया जाए। दोनों के ऊपर सैंक्शन है तो तेल की सप्लाई कम हो चुकी है और प्राइसेस आसमान पर पहुंच चुके हैं। इस वजह से न सिर्फ पाकिस्तान में और डेवलपिंग कंट्रीज में यूरोप के लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। उनकी रोड डेमोन्स्ट्रेशन है और तारीखी वहाँ पर फोर्ब्स के मुताबिक वहाँ पर तारीखी महंगाई और इन्फ्लेशन की वजह से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। आज ज़ेलेंस्की ने एक ट्वीट किया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट Emmanuel Macron, specific decision on strengthening Ukraine's defense capabilities, specific initiatives to restore the destroyed energy infrastructure. Thank you, my friend. देखें, दूसरी तरफ अमन की बात, तीसरी तरफ पहली तरफ अमन की बात, दूसरी तरफ मिलिट्री ट्रीटीज़ की बात हो रही है। इमैनुअल मैक्रोन पहले तो अमन की बात कर रहे हैं, आज वो जाकर उनके साथ मिलिट्री आर्सेनल्स की काफ़ी ट्रीटी साइन करके आए हैं ज़ेलेंस्की के साथ। यूँ रशिया के साथ कोई और मुल्क ट्रीटी साइन ईरान कर रहे हैं, चाइना कर रहे हैं, अमेरिका इसको फ्यूल कर रहे हैं और बराए नाम अपने के मैच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके एक हिपोक्रेटिक ओवरऑल हमें ग्राउंड नज़र आते हैं और रिकन्सिलिएशन और टेबल पर बिठाने की बात कहीं से भी नज़र नहीं आते हैं। और मिलियन जजीरा कह रहे हैं मिलियन सेंट टू बोल्स्टर यूक्रेन साइबर डिफेंस, और साइबर अटैक का भी सामना है। और रशिया इज वन ऑफ द सोफिस्टिकेटेड पावर इन द वर्ल्ड who is renowned for his cyber attack. एंड अमेरिकन जो इलेक्शन हुआ था इसमें भी रशिया ने काफ़ी अपना साइबर अटैक पर अक्यूज़ किया गया। उनमें उन्होंने प्रेसिडेंट जो वाइट हाउस के कुछ अकाउंट्स हैं उनको उन्होंने हैक किया। अब उनको एड करने के लिए आप यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने 6.5 मिलियन पाउंड का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ साथ उनके जो सेफ्टी और प्रोटेक्शन को इंश्योर करने की बात कर रहे हैं। और रशिया ने एक्यूज़ किया कि यूके यूएसए अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं, हमें उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। और उन्होंने विकीमीडिया फाउंडेशन के ऊपर रशियन कोर्ट ने कुछ पेनल्टीज़ लगाए हैं। रशियन कोर्ट के मुताबिक 2 मिलियन रशियन रेबल्स उन्होंने कर लिया है, फाइन लगाया है इस वजह से क्योंकि वो रशिया को रूटर्स को बताकर रशिया को डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे। तो
रशिया ने इसी के साथ साथ 4,000 आर्मी और जो उनके जो खेरसन नामी जो रीजन था परसों उन्होंने वहाँ पर अपने एनेक्सेशन में शामिल कर लिया था और इसके ऊपर 4,000 फौजी और भेजे हैं। तो आप वार की जो नेचर है आप यहाँ देख सकते हैं और वहाँ पर कम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रहे हैं। उससे खौफजदा होकर जो ईरान के जो कामाज़ाकी जो ड्रोन है उसकी बिल्कुल हैरान कुन नताइज देखने को मिले हैं। इसने पूरे मगरिब के जो राडार सिस्टम को फेल कर दिया वहाँ पर। इस वजह से और द राइस यहाँ पर मिडिल ईस्ट जो पोस्ट का बताना, द राइस ऑफ ईरान्स ड्रोन इंडस्ट्री, ईरानियन ड्रोन इंडस्ट्री की काफ़ी उप राइस हो चुका है और पूरी दुनिया से उनके लिए डिमांड आ रहे हैं क्योंकि उनकी जो ड्रोन इंडस्ट्री है उसको काफ़ी तकवीत मिली है रशिया ने जब से उनकी इसको ड्रोन को यूज़ किया। और ईरान ने काफ़ी अपने आर्सेनल्स ड्रोन सिटी ग्राउंड सिटी को उन्होंने एक्सपोज किया था। इसके बाद जब से उन्हें 1979 के रेवोल्यूशन के बाद उन्हें सैंक्शन का सामना करना पड़ा, उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी सोफिस्टिकेशन पैदा कर ली है। अब ग्रेन्स की जो सप्लाई है यूक्रेन की पूरी दुनिया में जाती थी, आज वो रशिया ने बहुत सारे हिस्से पर उसको सस्पेंड कर लिया है क्योंकि रशिया के कहना है कि उनके शिप्स पर कहीं से बमबारी हुई, उसमें यूक्रेन शामिल है, यूके शामिल है और यूएसए शामिल है। इस तरह से फूड famine, energy crisis, mental distress, political turmoil is not only in the South Asia or in the developing countries, it has become prevalent in the developed countries as well. If this brutal war is not stopped and America, the so-called lecture of democratic norms must not seek a lesson from the past, and America does not come ahead to formulate a sustainable solution, there will be dire consequences for the entire world. Inshallah, I'll be bringing more facts and realities. आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ेदार खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और अपना फीडबैक भी दे दें कमेंट बॉक्स में और इसको शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।